Hello everyone. This is the question which we have done in our last session, where we have to find the Christopher symbol of first kind and second kind, non-vanishing Christopher symbol. If Gij is equal to 0, this was the essential condition to find these non-vanishing Christopher symbols. Sometimes they may be vanished. So Gij must be equal to 0. Then we find III is equal to this one, and Iji this one, and Iik this one, and this was the first kind Christopher symbol. And when both I, J and K are not equals to 0, then we can say that these are equal to 0. In the similar sense, we can find the second kind of Christopher symbol, which we have find in detail in the last session. Now we are going to solve this question. Now we have to find the non-vanishing Christopher symbol for this matrix. By using this formula, we have to find the non-vanishing Christopher symbol for this matrix. So solution first. हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि first we will compare given matrix with ds square is equal to Gij, dxi and dxj. In this question we find that there is x, there is y, there is z and t. That means I and j moves from 1, 2, 3 and moves from 1 to 4. That is I barabar 1, 2, 3 and 4 and j is equal to 1, 2, 3 and 4. So we have to write it for I is equal to 1. We have fixed and we move like this. What is this? 1 4 dx1 dx4. Here in this expression we fix I is equal to 1 and we vary j is equal to 1, 2, 3 and 4. In the similar sense, now we will write for I is equal to 2 and we will move j. I is fixed for 2. I is fixed for 2 and j moves from 2, 1, 2, 3 and in the last ये आपका 2 or 4 in this way. Then G31 and after this G41. In this sense we will get the 16 elements. I is equal to 1, j barabar 1, 2, 3 and 4. We get these 4 elements for 2, for 3 and for 4. And we will find these 16 elements. These 16 now these 16 elements will be compared with these 4 elements. Here ds square is equal to this one and we are going to compare this one with this one. So how it is possible? Here dx1 and dx1, all we know that x1 is equal to x, x2 is equal to y, x3 is equal to z and x4 is equal to t. Therefore this term will becomes g11 dx square and this one becomes g12 dx dy. So now by comparing this matrix with this matrix we find g11 कितने के बराबर आया? कहिए we find g11 is equal to -1 and what is this? dx2 dx2 कहिए this one is g22 dy square because x2 is equal to y. And here what about g12? g12 is equal to 0 because this one is dx dy and here we find there is no term containing dx and dy. So therefore dx dy the coefficient है g12, it must be equal to 0. We get only g11. In the similar sense, this is the coefficient of g22, this is the coefficient of g33 and this is the coefficient of g44. बस ये तो समझाने के लिए लिखा, इतने सारे 16 एलिमेंट एग्जाम की कॉपी में भरिएगा. देन कंपेयरिंग g11 ये, व्हाट अबाउट g22 का ये -1, g33 -1 and g44 is equal to c square which is constant. And what about other one like g12, g13 and g14 or 21 and 22 and so on, they are all equal to 0. That is, we can say that Gij is equal to 0 if I not equals to j.
तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द गिवन मैट्रिक विद द स्टैंडर्ड मैट्रिक। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक को आपने जब लिखा वहां पे 1 2 3 4 के लिए 16 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं यही लिख के जाऊँ तो बस हो गया फिर तो काम ये, और यहाँ पे dx4 और dx1 और लास्ट एलिमेंट विल बी g44 dx4 एंड dx4. I is equal to 4 and j is equal to 4 and x4 is equal to t, तो this one is g44 dt whole square. तो g44 यहाँ पे क्या बन जाएगा c स्क्वायर, और बाकी जो सारे आगे वो कितने के बराबर हैं, वो अब 0 के बराबर। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द ऑल g11 g22 g33 एंड g44। दूसरा ये, अब आपको वी हैव टू अप्लाई दिस थ्योरम टू फाइंड द नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। पहले फर्स्ट काइंड के, तो this is the basic condition, gij is equal to 0 if I not equals to j. So this is the condition, gij is equal to 0 if I not equals to j. The first one is I. But this is the theorem, this is the result of the theorem. We have to apply here. We have to find g1 1 and 1. We have to find 1 1 1, then 2 2 2, then 3 3 3, then 4 4 4. Only 4 possibilities are here. I may take 1 2 3 and 4. So what about ye? By saying this result, we say that half g11 del g11 over del x1. Sorry, not I is here, 1 1, because 1 1 1. What about g11? g11 is constant, therefore it is equal to 0. So 1 1 1 is equal to 0. So what will you say about 2 2 2? By using this one, 2 to 2 will be g22 over dx2. लिखने की जरूरत नहीं है, भी लिखे देते हैं dx2. व्हाट इज द मीन ऑफ dx2? कहिए दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. किसका होना है? कहिए वी हैव टू डिफरेंशिएट g22, बट g22 इज इक्वल टू -1 व्हिच इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 0. इन द सिमिलर सेंस, व्हाट अबाउट 3 3 एंड 3? कहिए 3 3 3. What is 3 3 3? कहिए g33 का डिफरेंशिएशन होना है, बट g33 इज इक्वल टू 0, एंड इन द सेम सेंस ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो पहले वाले में जितने भी मिले कहिए वो सारे के सारे 0 थे। नाउ लुक एट द सेकंड रिजल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन I j and I, and what is the result? half del g I over del x j. द रिपीटेड जो भी यहाँ पे रिपीटेड टर्म्स हैं वो g के साथ और j का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये मुझे सपोज मैं j को 1 पे फिक्स कर दूँ। सपोज चलिए पहले 1 पे फिक्स करिए, लेट j इज फिक्स्ड एट 1. तो व्हाट I शुड बी, कहिए I कैन मे बी 1, बट इफ वी गिव I इज इक्वल टू 1 देन वी गेट अगेन दिस वन। तो हम क्या कहेंगे, अगर j को हमने 1 दे दिया देन वी मस्ट से I इज इक्वल टू 2. इसको क्या कहेंगे, अब आप 1 यहाँ पर रखेंगे तो कहिए वी कैन गिव 3, और 1 यहाँ पे तो 4. These are the possibilities for j is equal to 1. क्या क्या हो सकता है, 2 2 3 3 and 4 4. कोई क्या 1 1 क्यों नहीं रखा, कहिए by putting I is equal to 1 also we get this case again here. So there is no need to check it again here. We will only find 2 to 1, and by using the result we can say that it is equal to g22 over del x1. But what is g22? It is constant, तो differentiation 0. यहाँ सभी constant हैं, 3 3 का भी 1 के respect में differentiation 0 आएगा, और g44 का भी 1 के respect में differentiation 0 आएगा. तो अभी ये केस फिनिश नहीं हुआ, यहाँ पे अभी j बराबर 1 रखा था. नाउ हमें पुट करना है 2, j इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 3 एंड I इज इक्वल टू 4. We get what about 2? कहिए by putting 2 here we get 2 comma 2 comma 2, 2 2 comma 2. This is again this is the case which will be repeated here. So we will not put I is equal to 2 here. We will put I बराबर 1, I बराबर 1, I बराबर 3 and I बराबर 4. What is this? This is equal to del g11 over del x2, and this one half del g33 over del x2, half del g44 over del x2. So g11, g22, g33 they are all constant, therefore they are all equal to 0. Now by putting I is equal to, j is equal to 3 here, and I 1 1, और उसके बाद आप इसमें यहाँ पे 2 देंगे और फिर 4 देंगे, लेकिन ये सब कांस्टेंट होने के कारण ये सब 0 आएंगे. ये भी, और 2 3 और 2 भी, और 4 3 और 4. नाउ
first we put j is equal to 1, then j is equal to 2, then j is equal to 3, and in the last we will put j is equal to 4. So if we put j is equal to 4 and I is equal to will be 1, so we will get half del g11 over del x4. So g11 is constant, therefore this differentiation with respect to x4. What is x4? कहिए x4 is t. उसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0. इन द सिमिलर सेंस हम कह सकते हैं 242 342 343 they are all equal to 0. There is no need to write 444. Then this case will be repeated. यहाँ हमने ये 444 ये रिपीट हो जाएगा. तो सारे जीरो ये सारे जीरो ये. अब व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे पहला केस बनता है 1 1 कॉमा if we put I is equal to 1 1 1 comma 2 1 1 comma 3 1 1 comma 4. आप ऐसे भी लिख सकते थे, या we can take k is equal to 1, j is equal to 2 2, k is equal to 1 और ये आपका 3 3, k 1 और ये 4 4. पहले हमने k को 1 रखा और 3 केस बनाए, फिर हम k को 2 रखेंगे, फिर 3 केस बनाएंगे. ये मत लीजिए, ऐसे मत लीजिए, k से कहीं से भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. k को 1, k को 1, उसके बाद आपने if you put k is equal to 1, we may take I is equal to 2 2. हम यहाँ पे I को भी 1 नहीं ले सकते, फिर वही केस बन जाएगा पहला वाला. They are all equal to 0 because by definition GII must be differentiated with respect to xk. तो what is II? वो GII, तो यहाँ पे क्या है G22 G33, they are all constant, therefore they are all equal to 0. यही नहीं, जब हम 2 के साथ भी लेंगे सारे केस वो भी सब 0, और 3 के साथ भी 0, और 4 के साथ भी आपके सारे के सारे 0 हो जाएंगे. तो that means all the Christoffel symbol of first kind are equal to 0. अगर फर्स्ट काइंड के 0 होते हैं तो सेकंड काइंड के भी ऑटोमेटिकली 0 होते हैं. यहाँ पे एक लाइन लिखने से रह गई कि हम कैसे लिखना चाहिए था हमें, GHKIJ और H is equal to KIJ. तो ये फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इस तरीके से रिलेटेड होता है. अगर यहाँ पे कोई 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है. तो या आप दूसरे तरीके से कह दीजिए कि जो टर्म यहाँ पे नॉन वैनिशिंग आएंगे, जैसे 1 1 1 नॉन वैनिशिंग है तो 1 1 1 भी नॉन वैनिशिंग होगा. अगर यहाँ पे 4 1 4 नॉन वैनिशिंग होता तो 4 4 1 भी नॉन वैनिशिंग होता. फिलहाल अभी तो आप ऐसे कहिए कि सिंस all the first Christoffel symbol of first kind are 0, therefore all the symbol of second kind are also 0. ये कह के आप इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे. सारे के सारे 0 हैं, आपको एक भी नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिंबल इसमें हाथ नहीं लगा. और वैसे भी आप इसको इतना दिमाग नहीं लगाओ तो सीधे भी देखिए आई में करना तो डिफरेंशिएशन ही है. आई का आई के रेस्पेक्ट में और आई का जे के रेस्पेक्ट में. आई जब सारे कांस्टेंट हैं तो डिफरेंशिएशन तो 0 ही आना है, इसलिए उसमें कोई इतनी बड़ी मुसीबत की बात नहीं है. अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे. दूसरे में यह है कि अगेन हियर वी हैव टू फाइंड the non-vanishing Christoffel symbol for this matrix. Again we have to compare this one with the usual matrix. What is the usual matrix? This is the usual matrix which contains the 16 terms. If t is not there, then we have the 9 terms only. So here we have the 16 terms, and by comparing them we again get G11 is equal to -1, G22 again -1, G33 again -1, but G44 is a function of x, y, z. Now this is the particular change in this question and this question. In the previous question G44 was also constant, but here it is a function of x, y, z. Now the non-vanishing Christoffel symbol like this one, पहले वाले केस से half del G11 over del x1, but G11 is constant तो ये 0, तो कहिए 2 2 2 भी 0, और कहिए अब तो आप होशियार हो गए 3 3 3 भी 0 because all these 3 are constant. What about 4 4 and 4? कहिए हम बहुत होशियार हैं, हम क्या बताएंगे इसे? क्लास रूम में होता तो किसी की आवाज़ आती, और यहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है, डेड रूम कहलाता है ऐसा. चलिए खैर,
तो del g44 over del x4, तो इसमें 4 is a function of x y z, but x4 is t, तो differentiation of x y z with respect to t is equal to again 0 होने पर भी g44 is a function of x y z, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। आप लिख देंगे यहाँ पे f x y z और नीचे t, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। नाउ सेकंड केस, पहले आप j को 1 दे दें तो यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा हाफ डेल g11 ओवर डेल x2, ये नीचे जाता है 2 आ जाएगा। व्हाट अबाउट g11 के, ये g11 तो कांस्टेंट है, तो कुछ गलत लिख दिया गया। हाँ, यहाँ पे आएगा 2 जो रिपीट हो रहा होता है और नीचे 1, आंसर यही रहेगा। 1 के x के रेस्पेक्ट में करना था तो 2 का, तो वो कांस्टेंट है तो 0 2, ये इस प्रकार आपने 1 रखा था यहाँ पे, अब 1 तो रह गई, अब यहाँ पे 3 रखिए, अब 3 का भी 0 आएगा और उसके बाद मुझे इसमें 4, 1 तो रहना ही है, फिर 4। देखिए जब मैंने यहाँ पे j को 1 लिया है तो मैं i को 1 नहीं दूंगा, i को 2, 3 एंड 4, तो i को 2, 3 एंड 4, दो तो 0 आ गए हैं। मैं इसको और चेक कर लूँ, del g44 ओवर del x1, तो हाफ del, व्हाट अबाउट g44 का, ये इट इज ए फंक्शन ऑफ x y z ओवर del x। ऐसे छोड़ दीजिए बस लिख के, कोई हम डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, हमें फंक्शन का क्या फॉर्मेट है वो तो पता ही नहीं है, बस एफ एक्स वाई जेड, ये नॉन जीरो टर्म आया, ये मतलब है क्या। तो इसमें हमें जब हमने यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 रखा था तो 4 वाला 0 आपको नॉन जीरो मिला। अब आप उसमें 2 रखिए, 2 रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको 2 रखेंगे तो 3 रखना पड़ेगा। इन दोनों को सोचिए, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, g11 इज ए कांस्टेंट, 3 का 2 के, 2 मतलब y, x2 है ना, तो y के रेस्पेक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, करिए 0। अब 4 अगर करूँ तो 4, 2 और 4, तो ये मिलेगा आपको हाफ डेल g44 ओवर डेल x2, तो हाफ डेल f ओवर डेल y, ये नॉन जीरो टर्म है। f के आगे x y z अंडरस्टूड है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x y z, लिखना चाहें लिखिए वरना ऐसे रहने दीजिए, तो y के रेस्पेक्ट में आए। अब इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे पहले मैंने देखिए j को 1 रखा, j को 2 रखा, मैं j को 3 रखूँगा। जब मैं j को 3 रखूँगा तो आइए लिखे देता हूँ, फिर आप कहेंगे लिखा नहीं, 1 1, फिर 2 3 और 2, 3 रखा, फिर 1 1 दिया, फिर 2 2 दिया, लेकिन g11 का 3 के रेस्पेक्ट में 0, जो यहाँ पे होते हैं उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है g11, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 0, लेकिन 4 3 और 4 हाफ डेल g44 ओवर डेल x3, तो ये बन जाएगा हाफ f ओवर z। f का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y z, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब आपने 3 भी रख दिया, अब आप 4 रखिए, 4 रखेंगे तो पहले 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा और फिर 3 3 आएगा, 4 का 4 के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, तो अगर मैं 4 रखता हूँ तो 1, तो g11 का 4 के रेस्पेक्ट में 0, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी 0, और मैं 3 रखता हूँ तो भी 0, ये 0, क्योंकि 4 क्यों नहीं रख रहे, 4 रखते हैं, ये केस रिपीट हो जाएगा, तो आपके नॉन वैनिशिंग ये मिले यहाँ पे। अब आपको निकालने हैं ये लास्ट टर्म 1 1 और ये, तो आप k को पहले 1 दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे 2 2 रखूँगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि g का k के रेस्पेक्ट में, तो जो i है वो 2 2 है, तो 2 2 तो -1 है, उसका मैं ये लिखे देता हूँ, माइनस हाफ del g22 ओवर del x1, तो g22 इज ए कांस्टेंट एंड x1 इज x, तो ये 0। इसी तरीके से 3 3 1 भी और 4 4 और 1 भी, सब 0, क्योंकि 4 4 तो फंक्शन ऑफ x y z है। जब आप इसको 4 4 इज अ फंक्शन ऑफ x y z, अरे ये तो आ जाएगा, तो ये 3 0 हो गए, आपके 2 0 हो गए, 2 2 1, और ये अलग से देख लीजिए 4 4 और 1, तो माइनस हाफ डेल g44 ओवर डेल x1 डेल f ओवर डेल x, तो ये 4 4 1 आ गया। ये कब था, जब आपने यहाँ पे 1 दिया था। अब आप यहाँ पे 2 दीजिए, 2 देंगे तो यहाँ पे 1 देंगे, और 2 देंगे तो यहाँ पे 3 देंगे, तो
G11 का 2 के रेस्पेक्ट में 0, x2 के रेस्पेक्ट में, और G33 का भी 0 हो जाएगा। अब आप दीजिए 4 4 और 2 माइनस हाफ डेल G4 4 ओवर डेल x2, तो माइनस हाफ डेल f ओवर डेल y। इसी तरीके से आप जो है वो 4 4 2 निकाला। अब आपने यहाँ पे 2 दिया था, आप 3 दिए, अब आप 2 2 3 दिए। 1 1 3 तो G11 का 3 के रेस्पेक्ट में, G11 है -1 और x3 कितना है z, इसके रेस्पेक्ट में 0, 2 2 है -1 उसका 0, लेकिन जब आप 4 4 3 करोगे तो माइनस हाफ डेल G4 4 ओवर डेल x3 इट इज इक्वल टू माइनस हाफ डेल f ओवर डेल z। G4 4 is function of x y z और क्या है। In this sense, we find all the non-vanishing Christoffel symbol of second kind also, which are non-vanishing. ये second first kind also, sorry first kind, दिमाग में अब चला ना कि second का बताना, तो इसलिए निकला मुंह से वो। तो आपके non-vanishing जो आए थे क्या ना, एक तो ये आया था, फिर एक ये आया था, ये दोनों 0 थे, फिर ये आया, पूरी लाइन 0 थी, ये आया, फिर ये नहीं, ये 0 लाइन है, ये नॉन ज़ीरो है, और ये भी 0 है, और ये नॉन ज़ीरो है। तो इतने सारे ये नॉन ज़ीरो सब आ चुके हैं। अब आपको सेकंड काइंड के निकालना है। डरिए मत कि सेकंड काइंड में मुझे कितना सारा काम करना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए जिसमें मैंने टिक लगाया है वो नॉन ज़ीरो है, तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट काइंड के नॉन ज़ीरो होंगे वही सेकंड काइंड के भी होंगे। तो जैसे ये 4 4 1 4 है, तो ये सेकंड काइंड का कैसे बन जाएगा, 4 ऊपर और नीचे 4 1, तो ये सिमेट्रिक होते हैं, तो ये ऐसे 4 1 नीचे और 4 ऊपर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कहना है बस, ये होगी वैल्यू हाफ जो ये वाला 4 4 और 1 ये वाला, तो इसमें हाफ G, देखिए जो रिपीटेड है G4 4 और साथ में डेल G4 4 ओवर डेल x1। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाफ f G4 4 तो f है, और GF4 4 को x के रेस्पेक्ट होना कुछ नहीं है। इस रिजल्ट को, इसको IJI को, और इसको अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे GII एक्स्ट्रा, तो f यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा और कुछ भी नहीं होना है, तो बस यहाँ पे f आ जाएगा। इसी तरीके से 4 2 4, ये वाला 4 ऊपर गया, ये 4 2 नीचे, एक ही बात है। इसको आप निकाल लेंगे क्या होगा आपको पता ही। और इसी तरीके से आपका, मैंने ये 2 निकाले, फिर 4 4 3 4 3 4 वो निकालिए, और फिर ये वाले 1 4 4, इसको घुमा के भी कोई फायदा नहीं होना, यही रहेगा, और ऐसे ही आप ये लिख दीजिए। इनको सीखना ही है, आगे आपको ज्यूरेसिक पढ़ना है। ज्यूरेसिक को सॉल्व करने में ये टूल्स हैं उसके, जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करिए, जो बात प्रॉब्लम लगे आप मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा या फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।